اور بہنوں ذرا غور کریں، خودکشی یہ پریشانی کا حل نہیں ہے۔ ہم آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم خودکشی کر لیں گے تو پریشانیوں سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ دنیا کی پریشانیوں سے ہمیں نجات تو مل سکتی ہے، مگر آخرت کی پریشانیوں سے ہم نہیں بچ سکتے ہیں۔ بھلے ہی ایک انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو دنیا کی پریشانیوں سے تنگ آ کر آتم ہتیا کر لے، خودکشی کر لے، مگر دنیا کی پریشانی سے تو وہ چھٹکارا پا گیا، مگر قبر کی پریشانی، آخرت کی پریشانی اس سے کیسے بچ سکتا ہے؟ جبکہ دنیا کی پریشانی، دنیا کی مصیبت سے بہت زیادہ بڑی مصیبت وہ قبر کی مصیبت ہے، اور آخرت کی مصیبت اس سے بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو ہم چھوٹی سی مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم بڑی سی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ آئیے آپ کے سامنے ہم حدیث پیش کرتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ لا تدعوا علی انفسکم، کہ تم اپنے اوپر بد دعا مت کرنا، ولا علی اولادکم، اور اپنے اولاد کے لیے بھی بد دعا مت کرنا، ولا علی خدمکم، اور اپنے خادموں کے لیے، خدمت گزاروں کے لیے، خدمت گاروں کے لیے بھی تم بد دعا مت کرنا، ولا علی اموالکم، اور اپنے مال و دولت کے لیے بھی تم بد دعا مت کرنا۔ کیونکہ اگر تم بد دعا کرو گے اور اگر وہ قبولیت کی وقت ہوگی، تمہیں کیا پتا کہ تم اس وقت دعا کرو اور وہی وقت اللہ کی طرف سے قبولیت کی وقت ہو، اور تم ادھر دعا کرو اور ادھر اللہ تعالیٰ تمہاری بد دعا کو قبول کر لے، تو پھر پریشانی میں تمہیں ہی مبتلا ہونا پڑے گا، مصیبت میں تمہیں ہی گرفتار ہونا پڑے گا، اور زیادہ تمہاری پریشانی بڑھ جائے گی۔ آئیے ایک دوسری حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں سے ایک مسلمان جو بیمار تھا اس کی عیادت کے لیے گیا۔ ایک مسلمان جو بیمار تھا، اتنا بیمار، اتنا لاغر ہو گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس گئے، نبی نے دیکھا کہ وہ شخص بیمار میں اس قدر مبتلا ہو چکا تھا، اتنا لاغر اور اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ وہ بالکل چوجا کی طرح بن گیا تھا، بالکل چھوٹا موٹا چوجے کی طرح وہ نظر آ رہا تھا، اتنا بیمار کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ آخر یہ شخص بیمار ہوا تو ہوا، مگر اتنا بیمار اور اس قدر اس کا جسم بالکل چھوٹا سا، اس کا منہ بھی چھوٹا ہو گیا، ہاتھ پیر سب چھوٹے ہو گئے، بالکل چوجے کی طرح بن گیا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ کیا تم اللہ رب العالمین سے کچھ دعا کر رہے تھے؟ کیا تم اللہ رب العالمین سے کچھ مانگ رہے تھے؟ تو اس آدمی نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہا تھا، اللہ سے مانگ رہا تھا۔ کہا کیا تم نے اللہ سے مانگا تھا؟ اللہ سے کیوں، تم نے کون سی دعا کی تھی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ جو سزا ہمیں آخرت میں دینا ہے، اللہ تو وہ سزا ہمیں دنیا کے اندر ہی دے دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ، تم نے یہ دعا کیوں کی؟ تم نے ایسی دعا کیوں کی کہ اللہ جو سزا مجھے آخرت میں دینا ہے وہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے؟ سبحان اللہ، تم آخرت کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتے ہو، تم اس کی تاب نہیں لا سکتے ہو، تمہارے اندر اس کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تم نے یہ کیوں نہیں کہا اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، اور اللہ ہمیں آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، اور اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ تو یہ نبی نے بہترین دعا سکھلائی، اللہم آتنا فی الدنیا
दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। आप दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं जो कुरान के अल्फाज हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार, कि अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और अल्लाह हमें आखिरत में भी भलाई अता फरमा और अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा लेना। इस तरह दुआ करना चाहिए। बहरहाल फिर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के लिए दुआ की अल्लाह रब्बुल आलमीन से, जिसकी वजह से अल्लाह ने उस आदमी को शिफा दे दिया। तो इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम में से कोई भी आदमी अपने लिए बद्दुआ ना करे, अपने ऊपर बद्दुआ ना करे और ना अपने औलाद के ऊपर बद्दुआ करे। आज हम आप देखते हैं कि माशरा के अंदर ऐसे भी माँ बाप हमें नजर आते हैं जो अपने औलाद के लिए बद्दुआएं करते हैं। जब औलाद की तरफ से उनको कोई परेशानी होती है, जब औलाद उनका कहना नहीं मानता है, जब औलाद नाफरमान निकल जाती है, तो माँ बाप उनके लिए बद्दुआ करते हैं कि जा तो हलाक हो जाए, जा तो बर्बाद हो जाए, वगैरह वगैरह तरह तरह की बद्दुआएं उनके लिए करते हैं। हालांकि बद्दुआ नहीं करना चाहिए, बल्कि आप उनके हक में दुआएं करें। अगर आप दुआ करते हैं तो इसमें औलाद के लिए भी फायदा होगा, आपके लिए भी फायदा होगा। आप ये दुआ करें कि अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे, अल्लाह तुम्हें सही समझ अता फरमाए, अल्लाह तुम्हें सही रास्ते पर चलाए। इस तरह आप अगर उनके लिए दुआ करते हैं तो औलाद अगर सही रास्ते में आ जाएगी तो फिर उसके लिए भी नजात है और उसके लिए भी वो जिंदगी खुशगवार जिंदगी बन जाएगी और आपके लिए भी बेहतर और आपके लिए भी अच्छा है। मगर आज बड़े तो बड़े, छोटे छोटे बच्चों को भी माँ बाप गालियां देते हैं, अपने भाषा में बोलते हैं जाए मोरी जाए गड़ाई जाए, इस तरह की बातें बोलते हैं कि मोरगो नहीं करे गड़ागो नहीं करे। ऐसी ऐसी भाषा, ऐसी ऐसी बातें हमारी माओं की जबान से ज्यादा निकलती हैं। अपने औलाद को बद्दुआएं देने से बचो। अगर औलाद को आप बद्दुआ देंगे तो औलाद गलत रास्ते में जाएगी, जब गलत रास्ते में जाएगी तो औलाद भी परेशान और आपको भी परेशान होना पड़ेगा। अगर औलाद के लिए आप सही दुआ करेंगे, औलाद सही रास्ते में आएगी तो औलाद के लिए भी फायदा है, आपके लिए भी फायदा है। एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। इमाम काबा का नाम आपने सुना होगा, अब्दुल रहमान अस-सुदैस। ये पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा फजीलत वाली मस्जिद कौन सी मस्जिद है? वो खाना काबा है। वो काबा के दूसरी मस्जिदों में अगर 1 लाख नमाज पढ़ी जाए और खाना काबा में 1 नमाज पढ़ी जाए तो खाना काबा की 1 नमाज दूसरी मस्जिदों में, खाना काबा की 1 नमाज दूसरी मस्जिदों के 1 लाख नमाज पढ़ने के बराबर है। बताइए उस मस्जिद की इतनी फजीलत है और उस मस्जिद में अगर कोई इमामती करे, उस मस्जिद का अगर कोई इमाम बन जाए तो उस इमाम की कितनी फजीलत है। और वो फजीलत मिली अब्दुल रहमान अस-सुदैस को। उनके बारे में कहा जाता है कि वो जब छोटा बच्चा था और बच्चे थोड़ा शरीर होते हैं, बच्चे थोड़ा शरीर होते हैं, चुनांचे कहा जाता है उनके घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। माँ ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे इकट्ठा किए थे, मेहमानों के लिए सालन कुछ मंगाया, गोश्त वगैरह मंगाया और माँ सालन बना रही थी। सालन बन के लगभग तैयार भी हो गया था कि वो छोटा बच्चा आया और आकर के सालन में मिट्टी डाल दिया, धूल ला के डाल दिया। बताइए एक माँ का कितना गुस्सा होगा इसमें कि बड़ी मुश्किल से हमने मेहमानों के लिए इंतजाम किया था और ये आया और उसमें कीचड़ ला करके डाल दिया। बताइए कि सारा सालन ही बेकार हो गया, कितना गुस्सा आया होगा। लेकिन माँ गुस्से की हालत में किस तरह उसके जबान से बात निकलती है, अरे जा यहाँ से हट, अल्लाह तुझे काबे का इमाम बना दे। ना जाने वो कौन सी कबूलियत की वक्त थी कि अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया और आज वो खाना काबा का इमाम बन चुका है। मेरे भाइयों और दोस्तों, परेशानी हर इंसान के साथ आती है, तकलीफें हर इंसान के साथ आती है, मगर आप दुआ के बद्दुआ के बजाय आप गुस्से की हालत में भी अपने औलाद के लिए दुआ के कलिमात निकालिए। वला अला औलादिकुम वला तदू अला औलादिकुम, अपने औलाद के लिए बद्दुआ मत करो। वला अला खदमिकुम, और अपने खिदमतगारों के लिए बद्दुआ मत करो। वला अला अमवालिकुम, और अपने
मालो दौलत के लिए भी बद्दुआ मत करो। एक तीसरी हदीस हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, लेकिन यकीन मानिए कि आपको इस दुनिया के अंदर जो भी तकलीफ पहुंचती है, जो भी मुसीबतें आती हैं, जो भी परेशानियां आती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बदले में आपको नेकियां अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बदले में आपके गुनाहों को मिटाता है। अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर मोमिन के पैर में एक कांटा भी चुभ जाए तो हर चुभन के बदले अल्लाह ताला उसे नेकियां अता फरमाता है। सब्र करो, अगर तुम्हारी मुसीबतें पहाड़ों के बराबर भी हैं तो अल्लाह ताला तुम्हारे पहाड़ों जैसे गुनाहों को भी मिटाएगा। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए पहाड़ों जैसा सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन जब मुसीबत ज़दा इंसानों को, जब परेशान हाल इंसानों को, जो लोग दुनिया के अंदर मुसीबतों में थे, आजमाइशों में थे, इम्तिहानात में थे, उन लोगों को जब उनका अजर व सवाब दिया जाएगा, जब उनको उनकी नेकियां दी जाएगी, तो उनका अजर व सवाब जब आफियत वाले लोग देखेंगे, जो लोग दुनिया के अंदर सुखी में थे, जो लोग दुनिया के अंदर अमन व अमान में थे, जब ये लोग उनके सवाब को देखेंगे तो वो तमन्ना करेंगे, वो कहेंगे ऐ काश कि दुनिया के अंदर मेरे खाल को कैंचियों से काट दिया जाता, मेरे जिस्म के अंदर जो खाल है, जो चमड़ा है, काश मेरे चमड़े को कैंचियों से काट दिया जाता और इस तरह मैं तकलीफों से दो चार हो जाता और आज मुझे भी इसी तरह का अजर और सवाब मिलता। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, इस दुनिया के अंदर परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, मगर मुसीबतों से बचने का उपाय क्या है? मुसीबतों से छुटकारा पाने का उपाय क्या है? सब्र कीजिए, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल और भरोसा कीजिए और हर यकीन रखिए कि हर मुश्किलात के बाद आसानी है। इन्नमल उसरे युसरा, इन्नमल उसरे युसरा, हर मुश्किलात के बाद आसानी है। तो ये सब्र करना, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करना और अल्लाह के ऊपर भरोसा करना और इसी तरह अल्लाह के रास्ते में सदका करना। अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे सामने मौजूद है। बार बार आप सुनते हैं अस्सदक़तु तरुद्दुल बला, कि ये सदका जो है, ये सदका बलाओं को काट देती है, ये सदका जो है मुसीबतों को टाल देती है, ये सदका जो है बीमारियों को ले जाती है। तो सदका है कि सदका कब्र की गर्मी को बुझा देती है और एक इंसान सदका करने वाला इंसान वो आखिरत में अपने सदका के साए के नीचे होगा। हम अपने अकीदे की इस्लाह करें, अपने अकीदे को दुरुस्त करें। नफा का मालिक भी अल्लाह और नुकसान का मालिक भी अल्लाह है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटे से बच्चे अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किस तरह तालीम देते हैं। जामे तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट के ऊपर सवार हैं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे बैठे हुए, एक छोटा सा बच्चा, और अभी से ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको किस तरह तालीम दे रहे हैं और किस कदर उनके अकीदे को मजबूत कर रहे हैं। बयान फरमा रहे हैं, या गुलाम, ऐ लड़के, ऐ बच्चे, इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन, मैं तुम्हें चंद नसीहतें कर रहा हूँ, मैं तुम्हें चंद बातें बता रहा हूँ। इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन इहफज़िल्लाह यहफज़का, कि तुम अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह के अहकाम क्या है? नमाज पढ़ना, रोजा रखना, सदका करना, हज करना, ज़कात देना, ये सारे वगैरह वगैरह, लोगों को नेकियों का हुक्म देना, बुरे कामों से रोकना, ये अल्लाह के अहकाम की तुम हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। आगे फरमाया दूसरी नसीहत, इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, कि तुम अल्लाह के हुकूक की अदायगी करो,
तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने सामने पाओगे। और तीसरी नसीहत कर रहे हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक छोटे से बच्चे को, इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह, जब तुम्हें कुछ मांगना हो, जब तुम्हें कुछ सवाल करना हो, इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह, जब तुम्हें कुछ मांगना हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगो। व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, और जब तुम्हें मदद की जरूरत पड़े तो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगो। वालम अन्नल उम्मता लव इज्तमाअत अला अन यनफऊका बिशैइन लम यनफऊका इल्ला बिशैइन इल्ला क़द कतबहु अल्लाहु लक। और इस बात को याद रखो, अच्छी तरह से जान लो, नोट कर लो। वालम अन्नल उम्मता लव इज्तमाअत अला अन यनफऊका बिशैइन, अगर ये पूरी उम्मत भी इकट्ठा हो जाए, दुनिया के तमाम लोग इकट्ठा हो जाएं और तुम्हें कुछ फायदा पहुंचाना चाहें, लम यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक, तो तुम्हें ये जर्रा बराबर भी फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं, मगर उतना ही जितना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया है। और ये भी जान लो, वलव इज्तमाउ अला अन यज़ुर्रुका बिशैइन लम यज़ुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु अलैक, अगर पूरे दुनिया के लोग, पूरी उम्मत इकट्ठा हो जाए और सब मिल करके तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाना चाहें तो तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते हैं, मगर उतना ही जितना अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकद्दर कर दिया है। रुफ़िअतिल अक़लाम वजफ़्फ़तिस सुहुफ़, ये तकदीर लिखने वाला कलम ये खुश्क हो चुका, ये उठा लिया गया है, और तकदीर के सही भी ये खुश्क हो चुके हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान देखिए, अपने कलाम मुक़द्दस के अंदर अल्लाह ने बयान फरमाया, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मोमिनून। ऐ नबी, आप कह दीजिए, आप दुनिया के लोगों से कह दीजिए, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, कि हमें जो कुछ भी पहुंचती है, चाहे दुख हो या सुख हो, परेशानी हो, मुसीबतें हो, बीमारियां हो, जो कुछ भी हमें पहुंचती है, ये सब हमारे लिए मुकर्रर है, मुकद्दर है। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना, वही अल्लाह हमारा मौला है, वही अल्लाह हमारा मालिक है। व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मोमिनून, इसलिए मोमिनों को चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ उस अल्लाह के ऊपर ही भरोसा करें। अल्लाह के ऊपर भरोसा करना हर मोमिन के लिए फर्ज है। खुलासा कलाम ये हुआ कि दुनिया के अंदर आफतें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, उलझनें आएंगी, इम्तिहान देना पड़ेगा, आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा, मगर उसका इलाज क्या है? उसका इलाज, पहला इलाज है सब्र, और दूसरा इलाज है उसका कि आप यकीन रखिए कि हर मुश्किलात के बाद आसानी है। तीसरा आप ये रखिए कि तीसरा इसका इलाज है कि अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करना, भरोसा करना, और चौथा यह है कि तकदीर के ऊपर ईमान रखना कि जो भी हमें पहुंचती है, सुख हो, दुख हो, परेशानियां हो, ये सब हमारे लिए मुकर्रर है, मुकद्दर है। और फिर पांचवी जो किस्म है, पांचवी जो परेशानियों को दूर करने वाली चीज है, उसका इलाज है वो सदका है। अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाया, अस्सदक़तु तरुद्दुल बला, कि तुम सदका करो, सदका ये तुम्हारी मुसीबतों को टालने वाला है, ये तुम्हारी मुसीबतों को दूर करने वाला है। और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, या बिलाल इनफक या बिलाल वला तख्श अंजिल अर्श इकलालन, ऐ बिलाल तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जर्रा बराबर भी तंगी का तुम खौफ ना करो, डर ना करो। बिलाल खुद एक गुलाम था, एक नौकर था, बिलाल के पास क्या हो सकता है, मगर अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल को हुक्म देते हैं कि बिलाल तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और अर्श वाले की तरफ से तंगी का जर्रा बराबर भी खौफ ना करो।
اور اللہ نے غالباً سورہ سبا کے اندر بیان فرمایا فما انفقتم من شیء فهو یخلفه وهو خیر الرازقین، کہ تم اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو تو اللہ رب العالمین اس کی جگہ میں تمہیں اور زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ تم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، وما انفقتم من شیء، تم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو یہ بس سمجھنا کہ ہم نے خرچ کر دیا ختم ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے فهو یخلفه، وہ اللہ اس کی جگہ تمہیں اور زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ اللہ تو بہت بہتر روزی دینے والا ہے، وہ اللہ بہت بہتر روزی دینے والا ہے۔ آئیے آج ہمارے سامنے جو مائک لگایا گیا ہے یہ مسجد تقویٰ کا پروگرام آپ کے سامنے لگایا گیا ہے، اور تعمیر مسجد کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص دنیا کے اندر اللہ کے لیے گھر بنائے گا، جو شخص دنیا کے اندر مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جتنے مسلمان ہیں ہمیں پکا سچا مومن اور مسلمان بنا۔ یا اللہ ہمارے عقیدے کی اصلاح فرما۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جتنے لوگ پریشان حال ہیں، جتنے لوگ مصیبت زدہ ہیں تو ہمارے پریشانی کو دور فرما۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جتنے لوگ بیمار ہیں تو ان بیماروں کو شفائے عاجلہ